Good morning. Today I'm teaching you class 11 business study chapter 4 business services. So in my previous video I explained you about the types of bank accounts. Though we have basically many types of accounts, but according to our course we will study 5 types of main accounts. So in my previous video, I explained you saving account, current account, fixed deposit account. Now today, I'll explain you recurring deposit account. So recurring deposit accounts are recorded of the financial transaction between the customer and the banking institution. Here, it is also like the other type of accounts. It is also meant for to make a good habit of saving through the customer. ओके ये भी कस्टमर को एक अच्छी हैबिट में डालता है जिसकी वजह से वो अपना सेविंग करते हैं मंथली बेसिस पर. ओके सो इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप रेगुलर सेविंग हैबिट्स एंड अमंग द पब्लिक. The minimum period of deposit is 6 months and maximum is 10 years. तो इसका minimum 6 month, इसका minimum है and maximum is 10 years. Okay. These deposits carry a high rate of interest. जैसे कि हमारा fixed deposit में high rate of interest होता है, तो same as in recurring deposit account also, the customer gets high rate of interest and it is also varies bank to bank. Okay. Here, a customer gets passbook and time to time he get the entry in the passbook regarding the interest what he get along with the his premium amount whatever he has paid. Okay, and depositor cannot withdraw the amount from maturity. इसमें भी हमारा फिक्स पीरियड की तरह ही होता है जैसे हमारा फिक्स डिपॉजिट में होता है कि फिक्स डिपॉजिट में अगर आप एक बार पैसा डाल देते हैं डिपॉजिट कर देते हैं तो until and unless the maturity period will not come you're not able to withdraw the amount. Okay, but in emergency case or in premature case whatever the amount you have in your account in fixed deposit account, I'm talking about fixed deposit account. सो अगर आप इमरजेंसी में अमाउंट को निकालते हैं या कोई प्री मेच्योर निकालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जितना अमाउंट आपके फिक्स डिपॉजिट में है उसी के बेसिस पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है. बट अगर हम रिकरिंग डिपॉजिट की अकाउंट बात करें तो बिफोर मेच्योरिटी इट इज कैन नॉट बी विड्रॉन and but he can take a loan against the amount deposited or can close the account. Okay, so on the basis of the recurring deposit account the depositor can take loan from the same bank and if he not continue to this recurring deposit account then he can easily close the account. Okay, now let me more explain you the benefits of recurring deposit account. It encourages the saving. ठीक है, ये सेविंग इनकरेज करता है एंड इट हेल्प्स यू टू कलेक्ट और टू सेव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो इज वेरी गुड आफ्टर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. फिक्स डिपॉजिट के बाद जो सबसे बढ़िया जो इंटरेस्ट रेट है वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का है. इसमें जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है. इट इज़ हार्डली स्टार्टेड फ्रॉम द 1000 और एज डिपेंड ऑन द बैंक. इन सम बैंक्स यू पे 500 और देन द मैक्सिमम लिमिट इज एज पर द सेविंग्स ऑफ द कस्टमर. फाइन, द बैंक कैन यूटिलाइज सच फंड और ये जो फंड हम रेगुलर बेसिस पे अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं द पर्टिकुलर बैंक यूज दैट पर्टिकुलर डिपॉजिट्स इन लैंडिंग the money to the other customers. Okay, then now I want to explain you about the multiple option deposit account. So multiple means there are two accounts we will found in this deposit. Okay, one is your saving and another is your fixed. Okay, so these two combination of two accounts we call multiple
multiple option deposit account. Now, multiple deposit account is a combination of saving bank account and fixed deposit, or we can say MOD account. Interlink the saving bank account with a deposit is automatically transferred to a fixed deposit. Okay, so account and any amount is excess of predetermined amount is automatically transferred to the fixed deposit account. तो इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं वो आप सेविंग अकाउंट में सेव करते हैं. अगर आपका सेविंग अकाउंट से वो एक्सीड हो जाता है तो देन इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स एंड देन ऑटोमेटिकली गोज टू द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए चला जाता है. ठीक है, अब इस केस में जो आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो आप एक हाई रेट इंटरेस्ट गेट करते हैं, तो वट एवर द अमाउंट you get from your saving account in your fixed deposit account, उसका आपको high interest rate मिलता है. ठीक है, the account holder has to predefine a limit and money up to that limit is kept in the form of cash, and in saving account and any amount above the limit is automatically converted into a fixed deposit. So I already mentioned you, I already explained you that in fixed deposit, whatever if the particular limit you have decided for the saving, if it is exceed the amount in saving account, then it automatically converts into fixed deposit account. And another one feature, if the account holder wants to withdraw money, अगर मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है, इस अकाउंट से भी कस्टमर विड्रॉ करना चाहता है, तो उस कंडीशन में ही कैन विड्रॉ फ्रॉम द ATM or we can say through the check or more than the amount laying as a cash in the bank account, then the fixed deposit is broken immediately. ठीक है, for example, in his account he has deposited 70,000. So out of 70,000, if 50,000 is in his fixed account, अगर 50,000 उसके fixed account में है, तो here 2,000, 20,000 in his saving account. ये saving account में है, 50,000 उसका fixed deposit में है. Here if he need 60,000, अगर उसको 60,000 विड्रॉ करना है, तो इस कंडीशन में जो उसका फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है वो उसका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज ही हैड विड्रॉड द अमाउंट विच इज मोर देन ऑफ हिज सेविंग और मोर देन ऑफ हिज फिक्स डिपॉजिट. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो फिक्स डिपॉजिट है वो वहां पे खत्म हो जाएगा. फाइन, दैट इज टोटली ब्रोकन इमीडिएटली एंड अकाउंट होल्डर गेट्स द मनी. दिस इज कॉल्ड द स्विप आउट और रिजर्व स्विप. तो ये जो प्रोसेस है इसको हम स्विप आउट और रिजर्व स्विप कहते हैं. स्विप आउट और रिजर्व स्विप भी इसको कहा जाता है. ओके, नाउ the next topic, that is banking services. So in banking services, let me explain you first bank draft. Okay, bank draft also we call DD, that is demand draft. Here let me explain you what is the meaning of demand draft. So let me explain you with a short example. Fine. For example, after 12 you will go to take admission in any college. ठीक है, आप आफ्टर 12 किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं. ठीक है, उस कॉलेज का जो फीस है, उस कॉलेज का फी फिल करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए बैंक की हेल्प से डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा. या हम कह सकते हैं with the help of this bank draft you have to be make a DD in favor of the particular bank. ठीक है, कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट उनको कैश पे नहीं करेंगे, आप अपने अकाउंट से, अपने बैंक के अकाउंट से आप दूसरे बैंक के नेम के लिए एक ड्राफ्ट बनवाएंगे जो आपका खुद का बैंक बनाएगा. और किस बैंक के नेम पर बनाएगा? जो वो इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट का
जो पर्टिकुलर बैंक है, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए आप अपने बैंक के थ्रू बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे, जिसको हम डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं. इन शॉर्ट एब्रिविएशन में वी कॉल डीडी. ओके, नाउ लेट मी briefly explain you about more this bank draft. So bank draft is an order issued by a bank or any branch of same bank to pay the specific amount the person named in it. Okay, so कोई भी इंस्टीट्यूशन का जो एक पर्टिकुलर बैंक है, मान लीजिए एसबीआई इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का बैंक है. अब इस एसबीआई की अदर ब्रांचेस भी होंगी, तो यहाँ पे अगर हम बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं तो हम इस बैंक की जो ब्रांचेस हैं इसमें से किसी एक ब्रांच की हेल्प से हम वो डीडी बना सकते हैं. समझ में आ गया? अब इस बैंक के जितने भी ये ब्रांचेस हैं वो हर ब्रांच में वो डीडी काम करेगा. बस समझ में आ रही है? सो वी कैन से the more features about this bank draft, a requisition slip has to be filled in by the customer for the issue of the bank draft. और इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा कस्टमर होता है वो कस्टमर अपने बैंक से फॉर्म फिल करके, कुछ उसकी प्रोसीजर्स होती हैं. सबसे पहले वो बैंक जाएगा, उसको डीडी फॉर्म मिलेगा, वो उसको फिल करेगा. Then he pay money to make DD. उस DD को बनाने का कुछ पैसा भी दिया जाएगा, वो देता है, पे करता है. Then payment of fee of any of the institute. ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए जिसके लिए भी उसने वो DD बनाना है वो DD बनाएगा. ठीक है, ओके. सो हेयर जरूरी नहीं कि आपको उसमें सेविंग अकाउंट हो. आप जिस बैंक से डीडी बना रहे हैं या जिस बैंक से आप बैंक ड्राफ्ट बना रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपका उस पर्टिकुलर बैंक में सेविंग अकाउंट हो. आप अमाउंट भी उसमें पे कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ चेक. ठीक है, तो वो आपका बैंक ड्राफ्ट बनाएगा. देन यू हैव टू बी सबमिट दैट पर्टिकुलर बैंक ड्राफ्ट इन एडमिशन ऑफ द कॉलेज. ठीक है, उसका ओरिजिनल कॉपी आप सबमिट करते हैं. ओके, एंड यू मस्ट कीप a duplicate copy of the particular DD which you have made. Fine. Now more features about bank draft. So it is drawn by one branch of a bank on another branch of the same bank at some other place. ठीक है, किसी दूसरी जगह पर भी एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक के लिए वो बनाया जाता है. There is full guarantee for issuing bank branch about the payment of draft to the payee. ठीक है, इसमें फुल गारंटी होती है कि जिसको पेमेंट किया जा रहा है उसको वो पैसा इशू कर चुका है बैंक. सो देयर इज नो रिस्क ऑफ बैंक ड्राफ्ट गारंटी डिसऑनर्ड. यहाँ पे इसका एक और फीचर हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो कस्टमर है बैंक ड्राफ्ट इशू कर दिया है बैंक ने. नाउ देयर इज नो चांसेस ऑफ डिसऑनर्ड ऑफ दिस बैंक. वो जो बैंक ड्राफ्ट है वो बिल्कुल भी डिसऑनर्ड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो अमाउंट उस इंस्टीट्यूट में पहुंचना है वो इंस्टीट्यूट को ऑलरेडी वो बैंक ड्राफ्ट के तहत फाइनलाइज हो चुका है. फाइन. तो उस बिल जो वो आपका डीडी है उसका उसका डिसऑनर्ड होने का कोई चांसेस नहीं है. देन देयर इज अ फुल गारंटी बाय इशूइंग द बैंक ब्रांच अबाउट द पेमेंट ऑफ ड्राफ्ट टू द पे. सो देयर इज नो रिस्क ऑफ बैंक ड्राफ्ट गेटिंग डिसऑनर्ड. The customer is charged a fee or commission for issuing the bank draft. The amount of commission varies from bank to bank. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी हम ड्राफ्ट बना रहे हैं किसी बैंक से, तो बैंक हमसे लिटिल अमाउंट ऑफ ले सकता है. ठीक है, और इसका जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक. जरूरी नहीं कि सभी बैंक का सेम हो. ठीक है. इट मस्ट बी नोटेड दैट अ बैंक ड्राफ्ट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. और ये जो बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है वो ऑलवेज डिमांड में ही बनाया जा रहा है. ठीक है, जब किसी इंस्टीट्यूट ने उसको डिमांड किया है फी के लिए आपको डिपॉजिट करना है, देन ओनली यू हैव मेड द डीडी, तभी आपने डीडी बनाया है. ओके. देन नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज अ डिमांड ड्राफ्ट एंड बैंकर्स ड्राफ्ट. इसको डीडी के साथ साथ बैंकर्स ड्राफ्ट भी कहा जाता है. फाइन. सो दिस मच इज एनफ फॉर टुडे. In my next coming video, I'll explain you bankers check or pay order. Thank you and have a nice day.